Abdul Rahim. Wait, can you quickly make a call to Abdul Rahim? If you can. Okay, okay, okay. ठीक है, नो वरीज. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो प्रिज्म वाला रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है. समय 24 के किसी एक पेपर के अंदर आया हुआ है, मुझे देखना है. दैट वाज वेरी चैलेंजिंग पेपर क्वेश्चन. This one, a very important question. Okay. So, my dear students, question number 1 says, explain why the ray does not change direction when it enters the prism at face AB. Whenever there is a ray is going to be at 90° to the surface, it's going to go straight like that. Okay. It's not going to bend. So you're going to say the ray of light strikes the prism, making angle 90°. This is the rule. Okay. Okay, so now you guys need to remember 3 things. If angle of incidence is equals to the critical angle, or angle of incidence is greater than the critical angle, or angle of incidence is less than the critical angle. 3 में से कोई एक सूरत हाल होगी हमारे पास. ठीक है. So now what you guys are going to do, you're going to draw a normal line over here and try to measure the angle of incidence. Okay. Angle of incidence is always measured with respect to the normal line. So this is the normal line you're having. Okay. If you draw the normal line, so this is going to be the angle of incidence. Is it clear or not? Clear, sir. Okay. So now what's going to happen? Okay. So if this is, if let's suppose if this one is greater than, they have given us critical angle, that's 42. Okay. You have calculated the refractive index. If you measure this, so the angle is coming out something around 58 or 52, which is greater than, okay, this one. So what is going to happen that this light ray is going to totally internally reflect. Okay. तो अब क्या करना है? From this you are going to have a 58° angle and it's going to go all the way like this. ठीक है. तो यहाँ पे 58° and it's going to go this. So this is the ray of light it's passing through. So these two angles. This is 58. That is 58. Okay. So it's like that. So if the angle was lesser than critical angle, so instead of making it go like this, you should have made it like this. It वो bend होती light towards the normal. ठीक है. अगर अभी वो light जो है it has reflected inwards. सर एक दफा आप दोबारा समझा सकते हैं? सबसे पहला काम तो ये करोगे कि यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे. ठीक है. And you're going to put your protector all the way around over here and measure this angle. This is the angle of incidence. ठीक है. Angle of incidence ये हो गया. हमेशा नॉर्मल लाइन से लेते हैं. अब आपने प्रोटेक्टर को रखना है. अच्छा, आपने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है? वो बड़ा आ रहा है. ठीक है. मैंने एमएस में देख लिया है, उसकी जो है मैंने बना के भी देख लिया है. तो ये अराउंड 52 आ रहा है. 52 इज ग्रेटर देन 42. तो अब क्या होगा? अब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कि आपको ये रूल पता है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो द लाइट इंस्टेड ऑफ बीइंग रिफ्लेक्टेड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. ठीक है. सो अब यहाँ पे अब सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करवाने. अब आपने अपने प्रोटेक्टर को ऑल द वे अराउंड लाइक यू रखना है. ठीक है. एंड यू हैव टू सी लाइक वेयर इट इज मेकिंग एन एंगल 52.
Okay, angle 52 is going to be like this, and wherever your angle 52 is coming, so you have to draw a line. So this is this one. Okay, this is angle 52. Okay, so प्रोटेक्टर यूं रखना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि भाई मैंने आप लोगों को दोबारा करवाना है, तो भी करवा दिया। अब आज में जहाँ पे स्टॉप किया था वहां से बता दीजिए, वी कैन स्टार्ट ऑन। अच्छा, मैंने आपको तीनों तरह की रेस के बारे में बता दिया था, अबाउट अल्फा बीटा एंड गामा रेस। Okay, alpha particles, beta particles, and gamma. Okay, so let's start with the decay equations. Okay? Alpha decay and beta decay. These are the two types of decay we must be knowing about that. अच्छा जी, बैकग्राउंड रेडिएशन मैं करा देता हूँ उसके बाद। तो अच्छा, सो फार अभी तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया? जब हमने लेसन स्टार्ट किया था न्यूक्लियर फिजिक्स का, सो वी स्टार्टेड विद what is radiation, what is radioactivity, then we talked about why radioactivity occurs, then we studied about nuclear fission and fusion, then we studied about alpha beta and gamma rays and how they're being stopped, ठीक है। शीट ऑफ पेपर है, एल्युमिनियम फॉयल है, कंक्रीट ब्लॉक है, तो फिर हमने देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको गीगर काउंटर के बारे में बताया था, काउंटर का बताया था, और मैंने ये बताया था कि ओ लेवल्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको काउंटर बनाने के लिए भी यानी आना चाहिए, तो उनके सिलेबस में काउंटर है। जो मेरे ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको काउंटर के जो है ना सही से इलस्ट्रेटेड डायग्राम बना के सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उसकी प्रिपरेशन भी कर लीजिएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। और ये याद है कि हमने देखा था कि विच सोर्स इज प्रेजेंट, सोर्स में कौन से रेडिएशन प्रेजेंट है, तो हमने उसके अंदर जो है वो देखा था कि जब हमने बीटा, उस एग्जाम्पल के अंदर जब हमने बीटा रेस को जब पास कर, यानी कि जब हमने एल्युमिनियम फॉयल रखा था तो कोई ड्रॉप नहीं हुआ था काउंट रेट में, जिससे हमें पता चला था कि उसमें अल्फा और गैमा रेस मौजूद है बट बीटा पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। अल्फा डीके जो है, अब अगर अल्फा डीके में यानी कोई न्यूक्लियस अल्फा डीके कर रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? अच्छा जी, जी जो है वो आपका प्रोटॉन नंबर है, ए जो है वो न्यूट्रॉन नंबर है, ठीक है। जब अल्फा डीके होगा तो ये पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होगा। कैसे होगा कि आपके न्यूक्लियॉन नंबर से चला जाएगा 2, और प्रोटॉन नंबर यानी न्यूक्लियॉन नीचे प्रोटॉन नंबर से 2 जाएगा और न्यूक्लियॉन नंबर से 4 जाएगा, ठीक है। और ये क्यों जा रहा है? क्योंकि एक हीलियम या अल्फा पार्टिकल बन रहा है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है और इसके साथ एग्जांपल्स करते चले जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? आप यहाँ पे अल्फा भी लिख सकते हैं और हीलियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फा पार्टिकल से ज्यादा हीलियम एटम्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखो यार, ये 3 मार्कर सबसे आसान 3 मार्कर है, यकीन करो पूरे सिलेबस का। तो इसको आप पास पेपर्स में जाओ, ढूंढो और बताओ सर को, सर ये दिस इज सो मेनी टाइम बीइंग आस्क्ड, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। तो आप सबसे पहले जनरल इक्वेशन को याद करो, ठीक है। इससे पहले मैं एग्जांपल दूं, जनरल इक्वेशन को याद करो कि आपके पास जब अल्फा डी के, जैनब बेटा, अली इज देयर और नॉट? No, वेयर sir, इज अली? joined yet. I'll check. प्लीज आस्क हिम टू जॉइन, इंपॉर्टेंट है ना। बाकी सब आ गए, अब्दुल रहीम नहीं आए, अदरवाइज एवरीवन इज, उसकी मामा को कॉल करता हूँ। तुम लोग याद करो मीन भाई, आई जस्ट चेक विद हिम व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है भाई,
जो देर से है उसकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? आप बताएं, बस उसको जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अब्दुल रहीम को लेवरेज इसी वजह से मिला हुआ है ना, मैं सुकून से बैठ के घर पे देखूंगा सर ने क्या पढ़ा है, क्लास में आने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, ये बच्चा यूएस से आने के बाद लाउजी हो गया, सर को मैसेज करके बुलाना पड़ रहा है। उमर डोंट शेयर रिकॉर्डिंग विद हर। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन है ये? अच्छा, अब्दुल रहीम ही है। ओके, देखो भाई बड़ मजे की चीज है ये। अच्छा, अब अल्फा डिके की अगर मैं एग्जांपल में जाऊं, अब मैं आपको ना ब्लैंक्स दूंगा और आपने फिल करना है, ठीक है, बी विथ मी। और इसको जल्दी जल्दी करते हैं बिकॉज ये आसान चीज है। भाई एक एलिमेंट है यूरेनियम, वो बन रहा है थोरियम, और उसमें जो है वो अल्फा डीके हो रहा है, यानी हीलियम बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज 238 ओवर हियर एंड 92 ओवर हियर। हमारे बच्चों, आपने ये वाले ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है। चलो बताओ। सर 234 हम्म 234 और 90, और हीलियम और के हीलियम ऊपर में 4 and 2 लगेगा। बस खत्म हो गया। अब इसके इसके तुम्हें यकीन करो, इसके तुम्हें 3 मार्क्स मिल रहे हैं, इसके 3 मार्क्स में। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। अच्छा जी, रेडियम ट्रांसफॉर्म हो रहा है रेडॉन के अंदर। आप सर की बात पे, आप सर की बात पे भरोसा करें। आप पेपर को, जो बच्चे पास पेपर्स कर चुके हैं ना मेरे साथ न्यूक्लियर के, उनसे पूछ लें। अच्छा जी, ठीक है। Zena beta, isn't it the truth that they gave us these things and asked to write down in for 3 mark? Always. Always. हाँ जी, चलें अब ब्लैंक्स फिल करें। इस तरह से शफल करके दे सकते हैं, ठीक है। सर रेडॉन में 88 है। रेडॉन का 88 हो गया, ठीक है। 230 ये है। रेडियम है, ये रेडियम है। रेडॉन जो है वो आरएन है, ठीक है, ये रेडियम है। सर वो 230 है। वो कितना हो गया? 230 230 होगा, 230 होगा, माइनस नहीं होगा उसमें से। अच्छा 222 222, अब ये देखो ये गड़बड़ कर दी ना, 222, ठीक है। और अल्फा पे क्या लिखूं? सर फिर 4 and 2। 4 इंटू, ठीक हो गया, शाबाश। लास्ट एग्जाम्पल, ये तो यूरेनियम थोरियम हो गया, ठीक है। अच्छा जी, पोलोनियम को हम बनाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से एक स्कूल में हमारे बच्चे हैं, उनको टीचर ने कहा कि आपने जो है ना सारे एलिमेंट्स के नाम याद रखने पीरियोडिक टेबल से, ताकि आप अगर कोई दूसरा एलिमेंट बन रहा है तो आपको पता होगा वो कौन सा है। भाई ऐसा कभी भी नहीं आया यार, इतना जुल्म ना करो बच्चों। हाँ, वो एक्स्ट्रा 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 हो गया इतना, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि हमारे न्यूक्लियॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर कंजर्व रहेंगे, यानी ऊपर वाले सारे प्लस करा के, नीचे वाले सारे प्लस करा के वो एक, ठीक है। तो ये अल्फा डीके हो गया। सही बेटा, अल्फा डीके की इक्वेशन सबको समझ आ गई, ठीक है। जी सर। ओके जी। अच्छा, अब हम जाएंगे अच्छा, हमेशा होता नहीं है ना, क्या करें, मजबूरी है। ये इजी है यार, ये पूरी फिजिक्स ही इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये बिस्मत है, बिस्मत जो है वो टेरिलियम में चेंज हो रहा है, गेस, हाँ टेरिलियम में चेंज हो रहा है। और उसके बाद जो है ये अल्फा बना रहा है। टाइटेनियम का सिंबल हो गया, हाँ टेरिलियम स्टील, शाबाश, ये टाइटेनियम हो गया। तो ये हो गया हमारे पास। चलो भाई, यहाँ से ये उड़ाता हूँ, यहाँ से ये लिख देता हूँ, और यहाँ से ये उड़ाता हूँ, और यहाँ पे ये लिख देता हूँ, और ये, चलो भाई, किस्मत का ऊपर वाला, 210 ठीक, ठीक हो गया। टाइटेनियम के नीचे और 81, और अल्फा पार्टिकल में बेहतरीन, 4 and 2। ठीक है भाई, शाबाश। अमान समझ आ रहे? सर कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, क्योंकि आप देर से आए। आप क्लास रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगा।
देखो ये एक जनरल पैटर्न है कि अल्फा डीके के अंदर जो है ना, अल्फा डीके अगर आपको ये बता दिया जाए कि भाई एक एटम है वो अल्फा डीके के अंडर गो हो रहा है, तो उसमें इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अब हम देखते हैं बीटा डीके के अंदर क्या होगा। तो बीटा डीके बड़ा मजे का है, और इसमें ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, ये डॉटर न्यूक्लियस है, और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तुम लोग इंशाल्लाह एएस में जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो उसमें बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव पढ़ोगे। अभी से बीटा डीके, तो बस याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये एनर्जी की फॉर्म में जा रहा होता है बाहर। तो अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा, ए और जी हो गया। प्रोटॉन नंबर पे कोई, न्यूक्लियॉन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोटॉन ऐड हो जाए, हाँ एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, ये बीटा डीके होगा। ठीक है, सर मैं वही कह रहा हूँ, प्रोटॉन ऐड नहीं होते। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि शाबाश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आगे पढ़ोगे इसके अंदर कि वो यहाँ पे बताऊं क्या हो रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है, और न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जो है ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। काफी सारी डिटेल्स है, वो आगे देखोगे। तो फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखें कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो आप ये समझे कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, मगर असल में प्रोटॉन आएगा, मैं बताऊंगा किस तरह आएगा। नहीं, सर मुझे ना 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 ना, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट। ये बेसिकली ये हो रहा है कि एटम जो है ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, बाहर निकाल, अच्छा हाँ, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स है ना। हमने केमिस्ट्री में तो सिर्फ एटम का पढ़ा और शेल्स का पढ़ा है, तो शेल के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो इस वजह से उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पे पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इसकी डिटेल क्योंकि अभी मैं नहीं बता रहा, ना समझने का है आपको, तो इस वजह से आपने बस याद रखना है कि ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज द एडिशन ऑफ अ प्रोटॉन, यानी कंजर्वेशन हो रही है, प्रोटॉन इसमें एड ऑन हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, जो है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो है वो आपस में एक्सचेंजिंग हो रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन नंबर जो है उसमें कुछ, न्यूक्लियॉन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, और प्रोटॉन नंबर में आपने एक को ऐड करवा देना है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अच्छा जी, अब बीटा डीके की एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान है। तो लेट्स सपोज थोरियम, और ये बन रहा है प्लैटिनम के अंदर। तो थोरियम जो है ये बन रहा है प्लैटिनम, और चलिए जी, थोरियम मैं आपको दे देता हूँ 234 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये दोनों ही स्किप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 91 लिख देता हूँ। चलिए जी, कंप्लीट कीजिएगा। सर वो 234 रहेगा, 192 हो जाएगा, और फिर 0 ठीक एंड है, -1 बेटा पार्टिकल। ऊपर वही 234 ही रहेगा, और यहाँ 0 और -1। ठीक है, ये हो गया, सही बेटा। अच्छा, तो एक बड़ा मजे का है हमारे पास, जिसमें आपका पूरा एलिमेंट चेंज होगा, और वहां पे एलिमेंट आपको याद भी रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब कार्बन जाएगा, सर एक मिनट सर, थोरियम में तो आपका ऐड होगा ना, 93 बनेगा ना पहले। अरे हाँ 90 बनेगा, एक ऐड हो गया ना तो 90 बनेगा, एक ज्यादा हो गया ना प्रोटॉन नंबर, भाई प्रोटॉन नंबर एक ज्यादा हो गया ना डॉटर न्यूक्लियस में, सर -1 लिखा हुआ है। है ना, प्लस वन है। +1 है सर। ठीक है, अच्छा। तो +1 है, इसका मतलब प्लैटिनम में 91 है, तो थोरियम में से एक कम होना चाहिए। पेरेंट न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन कम होगा एज कंपेयर टू द डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा अब एक एक चीज, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, सही है, कार्बन है 12 6, ये है कार्बन 14 6 वाला। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे उन्होंने एलिमेंट भी अननोन कर दिया, और उसके न्यूक्लियाइड्स भी अननोन कर दिए। ठीक है, और ये मैंने आपको दे दिया। चलिए, अब इसको जरा ढूंढ लें, ये वो चीज है जो आपको याद करनी, इंपॉर्टेंट। सर ऊपर क्या आएगा, सर 14 सही है। 7 हो जाएगा। 7 अब जल्दी से जाओ, एलिमेंट कौन सा होगा? हाँ आप ढूंढो कौन सा एलिमेंट। डायरेक्ट टेबल से ढूंढना होगा। हाँ हाँ, प्रोटेबल देंगे नहीं, मगर उन्होंने लिस्ट दी है एक बार,
एक बार लिस्ट दी है और लिस्ट में से ढूंढना था। हाँ, लिस्ट में से ढूंढना था। अब जल्दी ढूंढो कि कौन सा वाला एलिमेंट है जिसका आपके पास आप बताएं कौन सा एटॉमिक नंबर है। जी बिल्कुल। सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, शाबाश। तो अगर कार्बन का एटम चला गया डीके में तो नाइट्रोजन बन जाएगा। ये आया सवाल 3 मार्क का, ठीक है। तो आपको सारी काम की चीजें करवाई जा रही हैं। ठीक हो गया भाई? जी सर। सही। तो ये आपकी बीटा डीके हो गई। साथ ने माशाल्लाह ग्रेड 9 में पूरी फिजिक्स पढ़ ली है। साथ अगले साल क्या पढ़ोगे फिर? सर रिपीट करूंगा सेम चीज। साथ को नहीं, साथ को सर के साथ फिर A2 पढ़ाएंगे सर इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है भाई। तो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ी है, ठीक है। इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज का कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक है। सही है। ये उस वक्त डिटेल में समझ जाएंगे। अभी बस फॉर द टाइमिंग समझ लो कि इसको किस तरह करना है, ठीक है। फॉर द टाइमिंग रट्टा लगा लो थोड़ा सा, उस वक्त पूरा समझाऊंगा इंशाल्लाह। लेफ्ट हैंड रूल से किस तरह ये डायरेक्शन देख लेंगे, अभी देख लो कि ताकि मिस ना हो। और मैं जब तुम्हें पास पेपर पे लगाऊं तो तुम्हें पता हो कि सर ने मुझे ये पढ़ाया है। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में हम इन पार्टिकल्स को लेके जा रहे हैं तो बीटा पार्टिकल्स निकल जाएंगे जूम ऊपर की तरफ, अगर पॉजिटिव ऊपर है, अल्फा वाले नीचे, ठीक है। और गैमा जो होता है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो अनडिफ्लेक्टेड चले जाएंगे। मगर यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अल्फा दूर जाके बेंड हो रहा है और बीटा शुरू में ही बेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं और उनपे चार्ज टू मास रेशो कम होता है, और बीटा पार्टिकल्स हैवी होते हैं, उनपे चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होता है, तो वो जल्दी और बड़े एंगल पे बेंड होंगे, ठीक है। और अल्फा वाले दूर जाके बेंड होंगे। सही है। अच्छा जी। अब हाँ, अब आपने ये देख, ठीक है, इसका ख्याल रखिए। अगर इसको स्वैप कर दें वो, तो आपने याद रखना है कि बीटा इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव विद अ लार्जर एंगल एंड अल्फा इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव विद अ स्मॉलर एंगल। गामा रेज डू नॉट डिफ्लेक्ट एट ऑल बिकॉज दे हैव नो चार्ज इन देम। ये बात क्लियर हो गई? मैग्नेटिक फील्ड जब क्रॉसेस बने हुए होंगे तो इनटू द पेज होगा, जब डॉट्स बने होंगे आउट ऑफ द पेज होगा। इनटू पेज, आउट ऑफ पेज क्या होता है अभी नहीं बता रहा, बस ये याद रखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के पास अल्फा बीटा गामा को पास करवाएंगे तो जब इनटू द पेज का केस होगा अल्फा जाएगा ऊपर, बीटा जाएगा नीचे, गामा स्ट्रेट। एक याद कर लो, अगला वाला उसका उल्टा है, ठीक है। ये 3 मार्क के लिए बनवाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। आउट ऑफ द पेज में इनटू द पेज याद कर लो बस, बीटा ऊपर अल्फा नीचे, सॉरी अल्फा ऊपर बीटा नीचे और गामा स्ट्रेट, दैट्स इट, ठीक है। जब इंशाल्लाह मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा इसके बाद तो फिर मैं डिटेल में ही बता। सही। ये नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ से इसको रेफर कर लीजिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था और इसमें इसने 3 कंक्लूजन्स निकाली थी। अब वो आपको, दे आर गोइंग टू गिव यू these 3 observations and their results. Like, what have you concluded? पहले, the first thing is observation and number 2 is conclusion. ठीक है। What did Rutherford do? Rutherford ने gold foil के ऊपर alpha particles को strike करवाया, ठीक है, and he observed 3 major observations. Few of the alpha particles, they bounced back at angles which were greater than 180. ठीक है, they were bounced back and they returned, ठीक है। These were the alpha particles which hit exactly the nucleus. तो इससे हमें ये पता चला कि अगर कोई चीज न्यूक्लियस पे जाके हिट करती है तो दैट ऑब्जेक्ट इज रीबाउंड और बाउंस बैक, दैट मींस न्यूक्लियस इज नॉट एम्प्टी, न्यूक्लियस हैज सम मास, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो द फर्स्ट, सो द एग्जैक्टली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं तो न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस को, यानी कि इट्स नॉट समथिंग एम्प्टी और लाइक वैकेंट। So if something is going to hit the nucleus, so it cannot penetrate the nucleus. Okay, it's going to get rebounded. So number 1, so ये क्या हो गया? Few alpha particles were bounced back at large angles. This is observation number 1. ठीक है? और इसका conclusion क्या होगा? That the whole mass of the atom is concentrated in the nucleus.
कि न्यूक्लियस कोई एम्प्टी नहीं है, कोई खाली चीज नहीं है कि उसके अंदर से कोई चीज पेनिट्रेट कर जाए, बल्कि जो उस पर हिट करेगा न्यूक्लियस को वापस भेजेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कुछ है, इजंट इट? ठीक है, तो ऊपर तो ये जो मैंने लिखे हैं तीनों, ये हैं ऑब्जर्वेशंस एंड यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। तो जल्दी से लिखो उसको। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ड्रॉ द फिगर, then write down observation number 1, and the conclusion is that the entire mass of the nucleus is concentrated in the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. Write down. Of course, yes. Aman, you'll get everything. ओके जी, अब आप देख रहे हैं कि जो बीच में आपको नजर आ रहा है, अगर आप दूर से अच्छा क्या हो रहा है, अगर आप दूर से अल्फा रेज को देखो, हर जगह तो न्यूक्लियस कुछ ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस से दूर से निकल गए, ठीक है? सो जो न्यूक्लियस से दूर से निकले हैं, दे हैव गॉन स्ट्रेट अवे। दैट इसका मतलब क्या है कि एटम का मेजॉरिटी पार्ट एम्प्टी है, बिकॉज देयर वाज नो डिफ्लेक्शन। ओके, तो most of the alpha particles pass undeflected, which shows major part of atom is empty. So I have written the conclusion as well as the observation in it. ठीक है, कि वो वाले parts जो एटम के न्यूक्लियस के आउटर पार्ट से गुजरे थे, like for instance, look here, if this is the atom and that's the nucleus, so those particles which struck the nucleus, they were bounced back. Okay, the particles which went like away from the nucleus, they just went like this, straight away without any deflection, isn't it? ये बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। जी अच्छा जी, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? What is the charge on the nucleus? Positive, because of the protons. So if something is going towards, like near the nucleus, not hitting the nucleus, so it's going to bend because nucleus ने उसको deviate कर दिया, repel कर दिया. All right. So these are 3 observations, very important. Learn them, memorize them, practice them. Okay. A very, very important question that can be asked in the exam for 4 marks. I hope this is clear to all of you. Okay. नहीं समझ आया बताओ, दोबारा बता देता हूं। इंशाल्लाह 3 दिन बाद हम भूखे होंगे, इस वक्त रोजा खोलेंगे। वाह वाह। What time we decided for the class, by the way? Two PM PST, 2:30, 3. It was 3, I guess. सर इफ्तारी से पहले मुझे तो ज्यादा अच्छा होगा। 3 PM. I thought 3 p.m. था। हाँ। 3 PM PST, yes. 3 PM PST. So I think it's like acceptable for all of us. ठीक है बच्चों? So this is a very important concept which you must remember. नहीं गामा डीके नहीं होता, क्योंकि गामा रेज जो होती है ना, वो गामा रेज होती है, में कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, वो बस एक एनर्जी, ठीक है, फोटॉन्स होते हैं, बस लाइट रेज होती है जिस मूविंग है। ये स्मोक डिटेक्टर है, मैंने स्मोक डिटेक्टर बता दिया था आप लोगों को, है ना? तो ये हो गया था। ठीक है भैया, आपकी क्वेश्चंस आ गई सारी, ये हम लोगों ने कर लिया। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है? जब हमने रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा
तो उससे पहले रखने से पहले भी काउंटर कुछ रीडिंग शो करेगा। क्यों भाई? हमने अभी सोर्स को रखा ही नहीं, पहले से रीडिंग हो रही है। इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि आपने आपके पास पहले से कुछ पैसे थे, ठीक है, बाबा ने और पैसे दिए, वो उसमें एड ऑन हो गए, ठीक है। अब आपने अगर ये देखने के बाबा ने कितने दिए, तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास पहले से कितने थे और अब कितने हो गए। यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट। एक जनरल एग्जांपल मैंने दी, ठीक है। तो बैकग्राउंड रेडिएशन वो रेडिएशन है जिसका रेडियो एक्टिव सैंपल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्रेजेंट होती है सराउंडिंग में। तो काउंटर जो है वो इसको पकड़ लेता है और शुरू में ही बता देता है। फिर जब आप सोर्स रखोगे तो काउंटर उसको एड ऑन कर रहा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड काउंट कितना है, ताकि आप उसको सब्ट्रैक्ट करा के एक्चुअल काउंट रेट निकालो, ठीक है। अब बैकग्राउंड रेडिएशन के जो सोर्सेज हैं उसमें कॉस्मिक वेव्स हैं, आर्गॉन गैसेस हैं, सनलाइट है, बिल्डिंग्स हैं, फूड्स हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें से रेडिएशन निकल के जा रही है और हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है। आपको इसे 2 याद कर लो, वो आपसे पूछते हैं सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, सो यू हैव टू राइट, ठीक है। ठीक है भाई। सर 1 मिनट रुके, मैं नोट डाउन कर लूँ इसको। यार नोट्स मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में, सब कुछ है, डोंट वरी मेरे बच्चे। जो लिखवाने का होता है मैं खुद लिखवाता हूँ, ठीक है। हाफ लाइफ से क्या समझ आ रहा है? कि देसी स्टाइल में बता दे हाफ लाइफ क्या होगा। उमर तुम बताओ, तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसका तर्जुमा कर दो बस, सिंपल हाफ लाइफ। अच्छा नहीं नहीं, उर्दू में सिर्फ हाफ लाइफ का तर्जुमा कर दो। शुगल मैं बता रहा हूँ, हाफ लाइफ का तर्जुमा। हाफ लाइफ है, ठीक है। तो ये जो रेडियो एक्टिव, हाँ हाँ, वो हमें कुछ भी नहीं पता हमारी आधी आधी जिंदगी कितनी है। तो ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है ना, ठीक है, तो ये जो है बेचारा इसमें से डीकेज हो रहे होते हैं, तो ये कम हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है। तो ये भी रिड्यूस होकर आधा रह जाएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, वो हाफ लाइफ है, ठीक है। सही भाई। तो अब नमाज का टाइम हो गया, 10 मिनट्स का ब्रेक होगा। मीनवाइल आप जो है नोट्स को अच्छी तरह से गो थ्रू करें, ठीक है। और अगर कोई लीव करना चाहे